For that perspective. Update coming in, Indian Youth Congress workers stopped a train at the Shivaji Bridge railway station in New Delhi. So once again, this time around, Congress workers have resorted to blocking a train in the national capital. Viewers, remember the kind of inconvenience that is being caused to the common man across the country. How so many trains have been cancelled given the kind of arson that took place at the railway stations, and also the Bharat Bandh call that has been given today. And now on your screens, visuals coming in of how Indian Youth Congress workers stopped a train at Shivaji Bridge railway station in the national capital. I believe Shireen is joining us live with more details on this. Shireen, if you can hear me, we can see some of those Youth Congress leaders wrapped in the Congress flag. They're lying down on the railway tracks, blocking the railway tracks. What's going on? We'll go across to Shireen in just a bit, but viewers, extremely shocking visuals. This was supposed to be a peaceful protest. The Congress party said that they will be sitting at Jantar Mantar and they will be holding a peaceful protest against the Agnipath scheme. They will be raising their voice against Enforcement Directorate, questioning Rahul Gandhi, but they've reached the railway tracks at the Shivaji Bridge railway station, blocked the train there. You can see how some of them are waving those flags of the Congress party. A man who could be spotted, one of the Youth Congress workers could be spotted wrapped in the flag and was blocking the railway track essentially. So all of those visuals that are now coming in of how the Congress party once again resorting to this kind of arson, and how is making sure that the Aam Aadmi party, I beg your pardon, has to face the heat of these protests. And that's exactly what Times Now has been opining, viewers, that there is a way about these protests. They're supposed to be held and staged in a democratic manner. The protest should take place at a designated protest site, but the Congress workers, Youth Congress workers, resorting to this kind of chaos and madness on the railway tracks, refusing to allow passage to the railway tracks and blocking trains once again. This is what we saw on day 1 and 2 after the Agnipath scheme was announced in several parts of the country. Picking up some reactions, listen in. रास्ते खुले हुए हैं, सारी एस्टेब्लिशमेंट और शॉप्स खुली हुई हैं, मार्केट्स भी अभी टाइम हो रहा है तो वो भी खुलेंगी। यहाँ पर किसी भी तरह की अराजकता है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है किसी भी ऐसी स्थिति में जिसमें असामाजिक तत्व हैं जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वी आर रेडी। तो आई डोंट थिंक कि दिल्ली में कोई इशू आने वाला है। मैम, जाम की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ेगी क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा है, तो किस तरह से आप देखते हैं? कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि बाहर के राज्यों से, दिल्ली के बाहर के राज्यों से कुछ लोगों का था, कुछ समूह थे जो स्टूडेंट्स भी नहीं थे, लेकिन कुछ समूहों ने आह्वान किया कि वो दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए, उन इंटेलिजेंस इनपुट को मद्देनज़र रखते हुए पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं बॉर्डर्स पर। सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक्सटेंसिव चेकिंग कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कोई भी कामयाब ना हो कोई भी अराजकता फैलाने में। मैम, राहुल गांधी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो पिछली बार देखा था कि किस तरह से पूरे हुजूम के साथ ये लोग गए थे, तो उसके मद्देनजर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं दिल्ली में? ये पिछले कुछ दिनों से ही चल रहा है, तो हमने अपने लेसन्स, वी हैव लर्नड आवर लेसन्स कि जहाँ जहाँ हमें लगा था कि हमारी कमी रही है उसको हमने पुख्ता कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि आज भी हमें कोई समस्या आएगी सिचुएशन को कंट्रोल करने में या किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने में। मैम, लोगों को ट्रैफिक की जरूर समस्या फेस करनी पड़ रही है और उनका क्योंकि ऑफिस टाइमिंग है, सोमवार का दिन है, तो किस तरह से आप उनसे क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि संयम रखें। ये देश की बात है, हमारी सार्वजनिक संपत्ति की बात है। ये जो अराजक तत्व हैं उनसे लड़ने की बात है, उनको बताने की बात है कि हम संयम से उनका सामना कर सकते हैं, ताकि वह ये जो अपना उनका एक नाकाम इरादा है कि दिल्ली में अराजकता फैलाएं, वह कामयाब ना हो। तो उसके लिए लोगों को संयम रखना पड़ेगा, उनको हमारा साथ देना पड़ेगा, ताकि एक दिल्ली में एक शांति प्रिय तौर से जो भी हमारे कार्य चल रहे हैं वह चलते रहें। मैम, जैसे जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उनसे क्या अपील करना चाहिए कि किस तरह से अरेंजमेंट जो हुए हैं उसमें 1000 लोगों की परमिशन दी गई है, तो उस पर क्या किस तरह से
कानून बिल्कुल स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जहां जंतर मंतर पर 1000 से ज़्यादा की गैदरिंग हो नहीं सकती। हमारा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ संपर्क हुआ है, उनको ये बताया गया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वह भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करेंगे और हमारा साथ देंगे। उनका हक है प्रोटेस्ट करना, लेकिन एक कानूनबद्ध तरीके से करेंगे तो एक स्वतंत्र भारत की पहचान है वो सामने आएगी। एक अराजकता फैलाने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है और एक छवि ही बिगड़ती है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो अराजकता फैलाती है। मैम, आखिरी सवाल, लगातार देखा गया कि पिछले दिनों में भी कांग्रेस की तरफ से दिल्ली पुलिस के ऊपर मैन हैंडलिंग के आरोप लगाए, इस पर क्या कहना है? कुछ वीडियोस मैंने भी देखे हैं और कुछ वीडियोस उधर से भी आए हैं। कुछ उस पर कुछ भी कमेंट करना अभी मैं नहीं समझूंगी कि उचित होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो लेट द लॉ टेक्स इट्स कोर्स, तो तभी बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हम एक के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप एक मीडिया में लगाएं तो वो ठीक नहीं है।